आज है 7 अगस्त 2026 और आज देश और दुनिया की खबरें लेके हम आपके सामने हाजिर हैं। हम हैं टॉमक्लास.com और हम वेरियस एग्जाम्स की तैयारी कराते हैं। तो आप हमारी ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप हमें www.tomclasses.com पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज देश और दुनिया की क्या खबरें हैं उसके ऊपर एक नज़र डालते हैं, लेकिन स्टार्ट में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। Tom Classes News, Global Access, Focused Insights, Focused Insights, your world of knowledge now. The future is unfolding on your screen. Seamless navigation, Tom Classes updates wherever you are. Download the vision, connect with the source. Tom Classes, your path to the forefront, available now. Available now. Tom Classes News, knowledge simplified, your world of learning available now on all platforms. TomClasses.com. Get the app. चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले जो है राजनीतिक खबरों की तरफ। और सबसे पहले जो हमारे पास खबर है वो ये है कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंटेंसिफाई यूथ आउटरीच। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी has expanded his social media engagement with the campaign aimed at younger voters following recent youth-led protests over education, employment and examination issues। तो ये जो है यहाँ पे खबर बनी हुई है। Former TMC MPs to meet PM Modi. The three former Trinamool Congress MPs, now aligned with the National Citizenship Party of India (NCPI), are scheduled to meet Prime Minister Narendra Modi, fueling speculation about future political alignments। तो ये जो है यहाँ पे खबर बनी हुई है। Public debate on education and governance. National political discussion remain focused on examination reforms, youth employment and governance, with both the government and opposition addresses public concern। तो जो है ना यहाँ पे ये खबर बनी हुई है। उसके बाद पार्लियामेंट्री एंड पॉलिसी डिस्कशंस जो है हाल फिलहाल में जो है मॉनसून सेशन चल रहा है, इसके चलते जो है ना वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज कंटिन्यूस कंसल्टेशन ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड गवर्नेंस इनिशिएटिव्स अहेड ऑफ अपकमिंग पार्लियामेंट्री एजेंडा। तो ये जो है यहाँ पे खबर हुई है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में भारत और बांग्लादेश के डिप्लोमेटिक टेंशन जो है खड़ी हो गई है। रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश हैव बिकम मोर स्ट्रेंड आफ्टर एक्साइल फॉर्मर बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना एड्रेस जर्नलिस्ट इन न्यू दिल्ली, प्रॉम्प्टिंग स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शंस फ्रॉम बांग्लादेश। तो जो है ये यहाँ पे खबर बनी हुई है। ग्लोबल अटेंशन ऑन यूथ लेड मूवमेंट। Political analysts continue to examine growing influence of youth-driven civic movement across several democracies, including India, where education and employment remain a central issue। तो जो है ये यहाँ पे खबर बनी हुई है। United Nations highlight reducing inequalities। The United Nations has emphasized efforts towards reducing inequalities as a part of sustainable development goals, encouraging government to strengthen inclusive public policy। तो ये है यूनाइटेड नेशन से खबर। International diplomacy remains active. Countries continue diplomatic engagements on regional security, geopolitical cooperation and humanitarian concern across multiple regions। तो जो है ना ये हमारी थी कुछ पॉलिटिकल और जनरल खबरें। अब चलते हैं थोड़ा सा देखते हैं बिजनेस न्यूज़ में हमारे पास क्या है। तो सबसे पहली जो खबर है वो नेशनल लेवल पे है कि इंडिया प्रपोजेस ब्रिक स्टार्टअप इनोवेशन फंड। तो भारत ने जो है ना ब्रिक्स कंट्रीज के लिए जो है ना एक स्टार्टअप इनोवेशन फंड की जो है ना वहाँ पे एक प्रपोजल रखा है। इंडिया हैज प्रपोज्ड द क्रिएशन ऑफ ब्रिक्स इंक्यूबेशन नेटवर्क एंड स्टार्टअप इनोवेशन फंड टू स्ट्रेंथन इनोवेशन, medium and small enterprises and industrial cooperation among BRIC nation।
तो ये जो है यहाँ पे खबर बनी हुई है। Focus on MSME and manufacturing collaboration. So BRICS industry ministers adopted a joint declaration emphasizing cooperation in manufacturing, logistics, renewable energy, startup and digital industrial development. तो ये जो है यहाँ पे खबर बनी हुई है। इसके अलावा बिजनेस लीडर्स गैदर एट उत्तरायण 2026, कोलकाता होस्ट द बादशाही बंगाली फाउंडेशन बिजनेस कॉन्क्लेव, bringing together policymaker, entrepreneur, investor, and industry leaders to discuss innovation and sustainable economic growth. इसके अलावा मार्केट अवेट्स आरबीआई पॉलिसी अनाउंसमेंट, इन्वेस्टर एंड बिजनेस आर क्लोजली वाचिंग द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एक्सपेक्टेड डिसीजन एक्सपेक्टेड टू इन्फ्लुएंस इंटरेस्ट रेट, बोरोइंग कॉस्ट एंड मार्केट सेंटीमेंट। तो ये जो है ना, ये खबर आ चुकी है और ये 5.25% का रेट जो है आरबीआई ने मेंटेन किया है वहाँ पे रेपो रेट। इसके अलावा इंटरनेशनल खबरों में अगर आप देखें तो ग्लोबल मार्केट रिमेन्स कॉशियस। तो ग्लोबल मार्केट जो है जियोपॉलिटिक्स के चलते सेंट्रल बैंक्स की पॉलिसीज के जो डिसीजन है उन चीज़ों को लेते हैं ना, ग्लोबल इक्विटी मार्केट जो है ना बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है इस समय। एआई कंटिन्यूज टू ड्राइव टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना वो एक मेजर फोकस है, मेजर थीम है इन्वेस्टमेंट की और जो है ना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की। तो इसलिए जो है ना टेक्नोलॉजी कंपनी इंक्रीजिंग स्पेंडिंग ऑन एआई इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग। तो इस क्षेत्र में जो है ना काफ़ी ज़्यादा निवेश हो रहा है। एनर्जी मार्केट रिमेन्स इन फोकस, क्रूड ऑयल जो है ना जो प्रेजेंट मिडिल ईस्ट में जो क्राइसिस खड़ा है और जो ट्रेड एंड टैरिफ है उस चीज़ को लेते हुए इन्होंने क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो है ना वो इन्फ्लुएंस है, स्पेशली जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है उस चीज़ को लेके और ग्लोबल सप्लाई चेन पे जो रिस्क बना हुआ है। तो ये फोकस में है हमारे पास। इंटरनेशनल बिजनेस मॉनिटर इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट्स। तो कई इकोनॉमीज में जो है ना डिराइव्ड इन्फ्लेशन जो स्पेशली क्रूड ऑयल के कारण जो हुआ है और इंटरेस्ट रेट जो है ना वो सेंट्रल बैंक डिसाइड कर रहे हैं उसी चीज़ को लेके क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ा है। तो हाँ ये जो है ना मतलब कई देशों से ये जो है ना खबर बनी हुई है यहाँ पे। तो हाँ, ये थी बिजनेस न्यूज़। अब चलते हैं थोड़ा सा स्पोर्ट्स न्यूज़ की तरफ, एक बार रुक करते हैं और देखते हैं स्पोर्ट्स न्यूज़ में हमारे पास क्या है। इंडिया ने श्रीलंका का टेस्ट मैच का जो सीरीज खेलेंगे उस चीज़ की तैयारी शुरू कर दी है। तो टीम इंडिया स्टार्ट्स 3-day वार्म अप मैच अगेंस्ट श्रीलंका 11 as preparation intensify for the upcoming two test series. The match provides player with a valuable practice in local conditions. तो जो है यहाँ पे खबर बनी हुई है। AIFF prioritize Brazil football friendly. The All India Football Federation has decided to prioritize a high-profile international friendly against Brazil over participation in inaugural FIFA Asian Cup, highlighting its focus on elite international competition. तो ये जो है यहाँ पे खबर बनी हुई है। Indian athletes prepare for major international events. Indian contingents across badminton, athletics, and other disciplines are in their final phase of preparation for upcoming global championship schedules later this month. तो ये जो है यहाँ पे खबर बनी हुई है। इंडियन स्पोर्ट्स कैलेंडर रिमेन्स बिजी। तो कई जो है भारतीय खिलाड़ी और एथलीट जो है कई इवेंट्स में पार्टिसिपेट ले रहे हैं जिसमें कि क्रिकेट हुआ, फुटबॉल, बैडमिंटन एंड एथलेटिक्स। तो ये जो है यहाँ पे खबर बनी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय पे जॉस बटलर बिकेम हाईएस्ट रन स्कोरर इन टी20 क्रिकेट। इंग्लैंड के विकेट कीपर बैटर जॉस बटलर हैं, उन्होंने जो है ना हाईएस्ट रन स्कोर किया टी20 क्रिकेट में, अचीविंग अनदर मेजर माइलस्टोन इन शॉर्टेस्ट फॉर्मेट ऑफ गेम। तो ये जो है यहाँ पे खबर है। एडन मार्क्रम लीड्स द 100। South African captain Aiden Markram has returned home from the 100 tournament due to personal reasons. Josh Butler has taken over captaincy of Manchester Super Giants. तो ये जो है यहाँ पे खबर बनी हुई है। Arsenal continues pre-season preparation. Arsenal are preparing for the Emirates Cup clash against Borussia Dortmund with several first-team players expected to return before the Premier League session begins. FIBA Women Basketball World Cup countdown. So teams continue finalizing preparation for the 2026 FIBA Women's Basketball World Cup in Berlin, with participating nations announcing squads and training camps. तो बर्लिन में जो है ना ये एक मैच होगा जिसमें विमेंस का जो है ना बास्केटबॉल जो है टूर्नामेंट खेला जाएगा। तो ये थी हमारी स्पोर्ट्स खबरें। अब चलते हैं थोड़ा सा जो है ना और देखते हैं हमारे पास जो वेदर है उसका क्या हाल है। तो जम्मू एंड कश्मीर में जो है ना इस समय जो है बारिश हो रही है और आप श्रीनगर का अगर तापमान देखें 18 से 28 डिग्री सेल्सियस, क्लाउडी विद लाइट रेन एक्सपेक्टेड है। तो यहाँ पे क्लाउडी विद ना लाइट रेन का जो है ना एक माहौल यहाँ पे बना हुआ है। तो जो भारतीय मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है आईएमडी, उसमें ना एक्टिव मानसून है लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री
with heavy to very heavy rainfall expected in various regions. So IMD has issued heavy rainfall alert for Delhi, UP, Rajasthan, Bihar, MP, Uttarakhand, Himachal Pradesh, Punjab, Jharkhand, Jammu and Kashmir, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, केरला एंड कर्नाटका। तो केरला, कर्नाटका में जो है ना बहुत ज़्यादा बारिश होने की उम्मीद है, एक्सपेक्टेशन है। असम, मेघालय में बहुत ज़्यादा बारिश होगी। इसके अलावा आप देख सकते हैं तो राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा आप देख सकते हैं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर में जो है ना काफ़ी ज़्यादा बारिश होने की उम्मीद है। केरला एंड कोस्टल कर्नाटका में अंडर हैवी रेन वॉश है। ये एरियाज जो है ना इसमें काफ़ी जो है ना लैंडस्लाइड वगैरह होने के जो है ना यहाँ पे इश्यूज मतलब ये हो सकते हैं। तो एक्सट्रीम हैवी रेनफॉल इज लाइकली ओवर केरला एंड हैवी रेन कंटिन्यूस ओवर कोस्टल एंड साउथ इंटीरियर कर्नाटका। फ्लडिंग एंड लैंडस्लाइड रिमेन ए कंसर्न। तो इन क्षेत्रों में जो है ना लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है। तो आप यहाँ पे रहते हैं तो आप अपना ख्याल रख सकते हैं और अवॉइड कर सकते हैं जो इन क्षेत्रों को। एक्टिव मानसून क्लाइमेट कंटिन्यूस ब्रिंगिंग वाइड स्प्रेड रेनफॉल। हाई ह्यूमिडिटी है 70 से 95%। कूलर डे टाइम है। टेम्परेचर इन रेन अफेक्टेड रीजन एंड अबव नॉर्मल रिवर लेवल इन सेवरल स्टेट्स। तो काफ़ी नदियों का जो है जलस्तर बढ़ गया है। तो जो है ये यहाँ पे खबर बनी है। साउथ वेस्ट मानसून रिमेन्स एक्टिव अक्रॉस मोस्ट ऑफ इंडिया। ह्यूमिडिटी 70 से 95% है। फ्रीक्वेंट थंडरस्टॉर्म एंड लाइटनिंग नॉर्थ ईस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया में जो है ना यहाँ पे है। रिस्क ऑफ लैंडस्लाइड इन हिमालयन एंड वेस्टर्न घाट रीजन। तो ये हमारे वेस्टर्न घाट है और हिमालयन रीजन में जो है ना लैंडस्लाइड का जो है रिस्क बना हुआ है। लोकलाइज्ड वाटर लॉगिंग एंड ट्रैवल डिस्ट्रप्शन एक्सपेक्टेड इन सेवरल सिटीज। तो कई सिटीज में जो है ना जो वाटर लॉगिंग जो है ना एक्सपेक्टेड है। तो आप अगर तापमान देखें तो दिल्ली का जो है ना 25 से 31 डिग्री सेल्सियस का बीच में तापमान रहेगा और हैवी रेन एंड थंडरस्टॉर्म एक्सपेक्टेड है दिल्ली में। 26 से 30 डिग्री सेल्सियस का तापमान मुंबई में रहेगा। क्लाउडी लाइट रेन एक्सपेक्टेड है मुंबई में। 27 से 32 डिग्री सेल्सियस का तापमान रहेगा कलकत्ता का और थंडरस्टॉर्म बिजली कड़के यहाँ पे। तो ये जो है यहाँ पे खबर है। 28 से 35 डिग्री सेल्सियस का तापमान है चेन्नई का। हॉट ह्यूमिड एंड आइसोलेटेड शॉवर्स है। बेंगलुरु का टेम्परेचर 20 से 57 डिग्री सेल्सियस मॉडरेट रेन यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। हैदराबाद का 23 से 30 डिग्री सेल्सियस क्लाउडी विद रेन है। अहमदाबाद 26 से 30 डिग्री सेल्सियस रेन शॉवर्स एक्सपेक्टेड है। जयपुर 24 से 31 डिग्री सेल्सियस हैवी रेन अलर्ट्स यहाँ पे है। लखनऊ 25 से 30 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे जो है पटना 26 से 31 डिग्री सेल्सियस हैवी रेन यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। गुवाहाटी 24 The future is unfolding on your screen. Seamless navigation. Tom Classes updates wherever you are. Download the vision. की जो है तारीख है वो Connect with the source. आप अगर ये फॉर्म कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जो है इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो आप हमारी ऐप Your path to the forefront. Available now. तो वी आर download.com। आज है फ्राइडे का डे और जो है लास्ट वीक डे है और हम लास्ट वीक डे सैटरडे लेके आते हैं जिसे कहते हैं Tom Classes आप इसे वॉच News. कर सकते हैं और जो है Knowledge simplified. तो we are download.com। Your world of learning available now on all platforms. TomClasses.com. Get the app.